ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हम आज के वीडियो में आइटम कवर करेंगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, रेफर टू एज पीपी। सो बेसिकली पीपी ही। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हाँ, पीपी। ओके। सो valuation of PP becomes a very important aspect of consideration by the auditor in the course of his audit. The auditor should analyze the expenditure incurred on PP, जो expenditure incur हुआ PP पे, और whether they are revenue or capital nature, मतलब revenue nature का है या capital nature का, और जो expenditure incur हुआ on PP. So रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है पीपी के लिए? तो कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन एसेट ओनली इफ, अगर प्रोबेबल है कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएट विद द आइटम ऑफ द कॉस्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, मतलब जो आइटम है उससे जो हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे जो एंटरप्राइज को फ्लो करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ द आइटम है वो रिलायबली मेजर कर सकते हैं। सो इट इज़, हम उसको एसेट कब रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन इट इज़ प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएट विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटरप्राइज एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी रिलायबली मेजर्ड। An enterprise evaluates under this recognition principle all its costs on property, plant, equipment and the time they are incurred. These costs includes cost incurred initially to acquire or construct करने के लिए an item of PP and subsequently add, replace या service करने के लिए. So initially to acquire or construct and subsequently to add to replace part of service head. Measurement of recognition. An item of PPE that qualifies for recognition as an asset should be measured at its cost. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं इंक्लूडेड ये पढ़ेंगे। तो क्या इंक्लूडेड है? परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, तो परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज माइनस नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, तो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस and after deducting trade discounts and rebates. Purchase price plus import duties plus non-refundable taxes minus trade discounts and rebates, or any cost जो attributable है to bringing the asset to the location and condition necessary for it capable of operating in the manner. अब any cost जो incur होती है directly attributable होती है to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, या फिर initial estimate of the cost of dismantling, removing the item, restoring the site on which it is located, referred to as decommissioning, restoration, similar liabilities, the obligation for which an enterprise incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that. Initial estimate of the cost of dismantling, removing the item, restoring the site which it is located, decommissioning, restoration, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कौन सा हो सकती है? प्रोफेशनल फीस, डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, costing cost of test whether that asset is functioning properly after deducting the sale proceeds, net proceeds from selling items, या फिर initial installation and assembly cost, employee benefit, cost of site preparation. So cost of employee benefit as defined in AS 15 arising directly from the construction. Cost of site preparation, delivery handling cost, installation and assembly cost, cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting the net proceeds from the selling items produced uh, while bringing the asset to the location and condition, प्रोफेशनल फीस। अब कौन सी कॉस्ट जो है हम नहीं कंसिडर करेंगे एज आइटम ऑफ पीपी? तो उनके एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनोग्रेशन कॉस्ट, जैसे कि हम कोई न्यू बिजनेस को जो है ओपन कर रहे हैं, उस ओपन करने में जो कॉस्ट लगी है, जैसे कि इनोग्रेशन कॉस्ट, वो जो है एक्सक्लूडेड होगी। सो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, इनोग्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन या अदर जनरल ओवरहेड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज।
तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू बिजनेस, बिजनेस और फैसिलिटी सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल ओवरहेड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद द क्लास ऑफ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर्स, कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। तो ये चार कॉस्ट जो है एक्सक्लूड है। तो न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विस का इंट्रोडक्शन, ओपनिंग, देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, या फिर न्यू लोकेशन पे कंडक्ट करने का विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। The expense have to be analyzed and properly classified. The revenue expense like regular repairs on assets have to be charged off to the statement of P&L. The below table summarize the audit procedures generally required। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के ऑडिट प्रोसीजर, पहला एक्जिस्टेंस, दूसरा राइट एंड ऑब्लिगेशन, तीसरा वैल्यूएशन एंड चौथा डिस्क्लोजर। सॉरी, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। पहले तो ना एंटिटी को रिव्यू करना है, इट्स प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी। तो पहले तो एंटिटी प्लान करेगी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी है। वो फिजिकल वेरिफिकेशन कौन करेगा? एंटिटी का खुद का स्टाफ या कोई थर्ड पार्टी, और कोई पॉलिसी रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी डन ऑन एनुअल बेसिस या फिर वंस इन 2-3 years। तो रिव्यू करो पहला तो एंटिटी का प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी, दैट इज वेदर परफॉर्म्ड बाय ओन स्टाफ और बाय अ थर्ड पार्टी, एंड द पॉलिसी रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी, दैट इज पीरियोडिसिटी के रिगार्डिंग भी पॉलिसी बनाएंगे, नहीं कि भाई एनुअल बेसिस पे करना है कि 2-3 years में करना है ऐसा। फिर एविडेंस कलेक्ट करो ऑफ अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग वेरिफिकेशन ऑफ पीपी शुड बी एग्जामिन्ड। एविडेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ दोज परफॉर्मिंग पीपी शुड बी एग्जामिन्ड। ऑब्टेन करो पीपी की फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट backed by the working sheet from the entity and perform the following procedures। तो पहला तो फिजिकल वेरिफिकेशन को परफॉर्म करना वो खुद का स्टाफ करेगा या थर्ड पार्टी करेगी एनुअल बेसिस पे या फिर 2-3 years में उसकी पीरियोडिसिटी पे पॉलिसी। फिर एविडेंस अप्रोप्रिएट सुपरविजन का ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ पीपी शुड बी एग्जामिन्ड। फिर ऑब्टेन करना पीपी फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट backed by the working sheet from the entity and perform the following procedures। फिर असेस करना कि जो सारे आइटम्स हैं ना पीपी के वो टैग्ड है, कैरी करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिजिकल वेरिफिकेशन वर्क पर्पस डू कैप्चर द एसेट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एसेट्स फिजिकली वेरीफाइड। तो असेस करना इफ ऑल द आइटम्स ऑफ पीपी आर प्रॉपर्ली टैग्ड एंड कैरी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नंबर्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन वर्क पेपर्स डू कैप्चर द एसेट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स फॉर एसेट फिजिकली वेरीफाइड। फिर रिकंसाइल करो items of PP as physical verified with fixed asset register। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर से जो है रिकंसाइल करो आइटम्स ऑफ पीपी को जो मेंटेन करते। फिक्स एसेट रजिस्टर कौन मेंटेन करता है? एंटिटी। एज एट द डेट और पीरियड ऑफ अंडरटेकिंग फिजिकल वेरिफिकेशन स्पेसिफिकली वेरीफाई इफ द पीपी एडिशंस अप टू द डेट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन हैव बीन अपडेटेड इन फिक्स्ड रजिस्टर। कोई भी एडिशंस जो हुए हैं स्पेशली हमको वेरीफाई करना है कि अगर कोई भी एडिशन जो हुआ है वो पीपीई का वो अपडेट हो गया है इन द फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड। ठीक है, फिर वेरीफाई करो द डिस्क्रिपेंसीज नोटेड based on the physical verification undertaken and the manner in such description dealt in the entities books and financial statement, and identify storage shortages assets not in working condition or active use should be। तो पहला तो हमको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, वो ओन स्टाफ करेगा या थर्ड पार्टी करेगी। देन हमको देखना है कि मतलब पॉलिसी बनानी है रिगार्डिंग पीरियोडिसिटी कि वो एनुअल बेसिस पे होगा या 2-3 में, या फिर उसके बाद फिर हमको अप्रोप्रिएट सुपरविजन करना है ऑफ दोज परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन शुड बी एग्जामिन्ड। फिर उसके बाद हमको देखना है कि जो सारे आइटम्स है ना, नहीं फिर हमको फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है बैक बाय द वर्किंग शीट्स एंड पेपर्स। उसके बाद ना देखना है कि सारे आइटम्स जो पीपी के वो टैग्ड है कैरी करते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अगर कोई भी
फिर हमको फिक्स रिकंसाइल करना है फिक्स एसेट रजिस्टर से, और देखना है कि अगर पीपी में कोई भी एडिशन हुई है अप टू डेट, तो वो सारी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन में अपडेटेड है फिक्स एसेट रजिस्टर में। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो कैसे जो है वो डिस्क्रिपेंसी डेल्ट की गई है इन द एंटिटी की बुक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल, आइडेंटिफाइड शॉर्टेजेस, एसेट इन नॉट इन वर्किंग कंडीशन, या फिर एक्टिव यूज शुड बी अकाउंटेड फॉर एज डिलीशंस in the books of account post approval by the entity's management. Depreciation should have ceased to be charged after the date of deletion. अब completeness, तो एसेट पे ERC भी होता है ना, सो एक्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो वेरीफाई द मूवमेंट इन पीपी शेड्यूल। जैसे कि क्लास वाइज वेरीफाई करो मूवमेंट इन पीपी शेड्यूल को, कंपाइल्ड बाय द मैनेजमेंट, दैट इज ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द पीरियड, डिलीशंस ड्यूरिंग द पीरियड इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिलीशन इज इक्वल्स टू, टैली करो क्लोजिंग बैलेंस को एंटिटी के बुक्स ऑफ अकाउंट से, क्लोजिंग बैलेंस को टैली करना है बुक्स ऑफ अकाउंट से। चेक करो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द मूवमेंट इन पीपी शेड्यूल। फिर टैली करो ओपनिंग बैलेंसेस को, पहले तो क्लोजिंग बैलेंस को बुक्स ऑफ अकाउंट से किया था, ओपनिंग बैलेंस को अब प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और एडिशंस के लिए ऑब्टेन करेंगे लिस्ट ऑफ ऑल एडिशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, परफॉर्म द फॉलोइंग फॉर मटेरियल एडिशंस, वेरीफाई इफ सच एक्सपेंडिचर मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ पीपी AS10। फिर ये कॉस्ट जो है इंक्लूड करती है कॉस्ट इंकर्ड इनिशियली और रिक्वायर कंस्ट्रक्ट, या फिर एड टू पास सेपरेट। वेरीफाई करो दैट द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी इज items such as spare parts, standby equipment, servicing equipment are recognized in accordance with AS10 when they meet the definition of PP, otherwise such items are classified as inventory। टेस्ट करना है परचेज इनवॉइस को, इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट को, रिपोर्ट को, या अदर सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन बाय द एंटिटी टू डेट ऑफ एडिशन, ऑल्सो डन। वेरीफाई करो पीपी में कोई एडिशन जब अप्रूव्ड है बाय मैनेजमेंट, अथोराइज पर्सनल जो है अप्रूव करता है पीपी एडिशन। फिर वेरीफाई करो वेदर प्रॉपर इंटरनल प्रोसेसेस प्रोसीजर्स लाइक इनवाइटिंग कॉम्पिटिटिव कोटेशंस, फ्लोटिंग टेंडर्स were followed prior to finalizing the vendor for procuring items of PP, awarding of work contract for capital projects by checking the supporting documents of the sample selected। अब डिलीशन हो रहा है कोई पीपी का, तो हमको अंडरस्टैंड करना है फ्रॉम द मैनेजमेंट रीजन और रैशनली फॉर डिलीशन। जब रीजन जानो कि क्यों डिलीट किया और उसका रैशनली, तो डिलीशन। New purchase of similar asset, या once the old asset are no longer fit to be used in the production process, and the manner of disposal भी बताना है। फिर obtain करो management का approval and discard note authoring disposal of the asset from its active use। Verify the process followed for sale of discarded PP, for example inviting competitive quotes, tenders and the basis of calculation of sales proceeds। वेरीफाई करो कि जो मैनेजमेंट है उसने एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया डिलीशन ऑफ पीपी को, ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, रिजल्टेंट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपी। अब वैल्यूएशन, it is a common understanding the value of fixed asset depreciates due to efflux of time, use and obsolescence। The diminution of the value represents an item of cost to the entity for earning revenue during a given period. Unless this cost in the form of depreciation is charged to the accounts, the profit or loss would not be correctly ascertained and the values of PP would have shown at higher amounts। The auditor should वेरीफाई करना है कि एंटिटी ने जो है चार्ज किया डेप्रिसिएशन सारे आइटम्स पे ऑफ पीपी, अनलेस एनी आइटम इज ऑफ पीपी इज नॉन डेप्रिसिएबल लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सारे आइटम्स पे जो है चार्ज किया डेप्रिसिएशन। असेस करना है कि डेप्रिसिएशन का मेथड है जो यूज टू रिफ्लेक्ट द पैटर्न विच द एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी, स्ट्रेट लाइन, डिमिनिशिंग वैल्यू, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एज एप्लीकेबल। वेरीफाई करना है वेदर दी management has done an impairment assessment AS28। अब rights and obligation, in addition to
In addition to the procedures undertaken for verifying completeness of additions to PP during the period under audit, the auditor, while performing testing of additions, should also verify that all PP purchase invoices are in the name of the entity. सारे परचेज इनवॉइसेज जो नेम ऑफ द एंटिटी है, एंटिटी लीगल टाइटल ऑफ ओनरशिप, ऑल एडिशंस जो है ऑडिटर को चेक करने, कन्वेंस सेल डीड या कन्वेंस डीड टू वेरीफाई वेदर द एंटिटी इज अ लीगल और वैलिड ओनर है या नहीं, ऑडिटर को इंसिस्ट करना है, वेरीफाई करना है ओरिजिनल टाइटल डीड्स फॉर ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हेल्ड एज एट द बैलेंस शीट डेट. अब in case the entity has given such immovable property as security for any borrowings and the original titles are not available to the entity, auditor shall request the entity management for obtaining confirmation from the respective lenders that are holding the original title deeds. In addition, the auditor should verify the register of charges available with the entity assess again. ठीक है. Now disclosures. अब पीपी का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? लैंड, बिल्डिंग, पीपी, फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, अदर्स. Assets under lease shall be separately specified under each class of asset. Reconciliation of the gross and net carrying value of amounts of each class of assets at the beginning and end of the reporting period showing additions, disposal, acquisition. Sums है जहाँ पे वो return of है on a reduction of capital, revaluation of asset. Now, to be disclosed as additional regulatory title deeds of immovable property not held in the name of company. Relevant line item in the balance sheet, description of item of the property, gross carrying value, title deeds in the name of. ठीक है. तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पीपी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइटम के साथ. बाय बाय.